Hi learners, today we are going to start with Unit 4 of Environmental Studies, that is biodiversity and its conservation. So in this video we are going to cover the following topics. So that are like definition of biodiversity, its value of biodiversity, India is a mega diversity nation, hotspot of biodiversity and conservation. Like there are many topics that we are going to cover in this PPT. Along with that, at the end of the video you are going to know about the important question. Along with that, you will also get some tricks and tips how you can solve them. So let's start with the first topic, that is biodiversity. And to get to know what is biodiversity, as you can see, biodiversity is a mix of two words, that is bio and diversity, whereas bio means life and diversity means variety. So biodiversity means the varieties of life that are present on our planet, like as you can also see in the definition, the variety of animals, plants, fungi and even microorganisms like bacteria that are present in the world, in our planet. So that is the biodiversity. And now if we talk about the three types of biodiversity that are genetic, तो जेनेटिक मीन्स जैसे कि एक ही टाइप की स्पीसीज है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है. लाइक अगर आपने कभी स्वीट कॉर्न देखा हो तो स्वीट कॉर्न एक येलो सिर्फ उसके अंदर आता है कलर में, एक स्वीट कॉर्न है जिसके अंदर जो स्वीट कॉर्न्स के जो सीड्स होते हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है कि आप एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, बट इन विद इन द स्पीशीज देयर आर मैनी डाइवर्सिटीज. लाइक इफ यू कैन सी द बर्ड्स, ए पर्टिकुलर बर्ड के अंदर देयर मल्टीपल स्पीसीज आर देयर. द सेकेंड वन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. ये क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन के और हैबिटेट के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती है वो होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी. सो द लास्ट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, जब आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर या पर्टिकुलर रीजन वगैरह के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रेजेंट, तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं कि इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपकी उसके अंदर किस टाइप की डाइवर्सिटी है. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द biogeographical classification of India. So there are total 10 biogeographical zones that are present in India. So if we going to locate those on our Indian map, so the first one is Trans Himalayas. So आपका जो ये areas है, ये areas they are known as the Trans Himalayas. If we talk about the desert, so this is the part of the desert जहाँ पे आपके सारे desert located है. So like if we look at this area, this is the western Ghats, and if we going to look at, these are the coast जो बिल्कुल like समुद्र के पास है ना, these are the coast. And northern east India, this is the area of northern east India. And like if you talk about semi arid, तो जो आपका ये area, this is semi arid area, और फिर आपका जो ये वाला area बच जाता है, this is known as the Deccan Peninsula. So like there are total 10 biogeographical zones of India. तो ये 10 biogeographical zones के अंदर इसलिए डिवाइडेड है क्योंकि जो एरियाज है ना कि कुछ पर्टिकुलर नेचर है, कुछ पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक दूसरे के साथ जाते हैं, यहाँ कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी मिलती है. दैट्स वाई हमारा इंडिया जो है टोटल 10 बायोडाइवर्सिटी जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर क्लासिफाइड है. सो दोज 10 बायोडाइवर्सिटी जोग्राफिकल क्लासिफिकेशंस आर गिवन हियर. I hope you understand through the map, like these are the different 10 located to different regions of India. Like islands, अगर आप islands की बात करो तो जैसे यहाँ पे अंडोमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड आते हैं, तो they are the islands. So now let's move forward with the next topic, that is value of biodiversity. कि biodiversity की क्या values है, किस तरीके से biodiversity is important to us. Like first one is consumptive value. बायोडाइवर्सिटी की कुछ कंजम्पटिव वैल्यू है फॉर कंजम्पशन की, कंजम्पशन के लिए उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं उसके रिसोर्सेज का. लाइक फ्यूल हो गया, फूड हो गया, कुछ मेडिसिन होगी, उनको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं. ठीक. सो द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिव यूज़. कुछ बायोडाइवर्सिटी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूज़ करके उसका डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं. लाइक एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स हो गए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर रोल प्ले करते हैं. ठीक है, वो फर्दर प्रोसेस होते हैं, फर्दर उसके आप और काम होता है और दे आर सर्व्ड एज अ प्रोडक्ट. Now next one is social values और ethical values that we can say, जो कि कल्चरली ट्रेडिशनली रीजन परस्पेक्टिव से हमारे बायोडाइवर्सिटी की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मॉरल वैल्यूज़ है. ठीक है, लाइक बायोडाइवर्सिटी की ये सब वैल्यूज़ है कि कल्चरली ट्रेडिशनली कितना सिग्निफिकेंस है. कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, लाइक उनके कल्चरली और मॉरली एथिकली हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है उनको प्रिजर्व करना है, उनको सेव करना. द नेक्स्ट वन एस्थेटिक वैल्यू.
लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, नेचर, उनको आप देखते हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको अच्छा लगता है। तो ये ब्यूटी और इंस्पिरेशन है जो हमें नेचर से मिलती है, वरना तो उसके बिना तो प्लानट जो है वो कुछ भी नहीं होगा, एक बंजर ज़मीन की तरह होगा। बट बिकॉज ऑफ प्लांट्स, बिकॉज ऑफ द एनिमल्स, बिकॉज ऑफ द नेचर, जिसकी वजह से एक एस्थेटिक वैल्यू जो है जो हमें बायोडाइवर्सिटी की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ऑप्शन वैल्यूज। कुछ पोटेंशियल होता है इन द बायोडाइवर्सिटी यूजेस के लिए, कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो प्लांट से बनती है, और कुछ ऐसे डिजीज़ के में भी हो सकता है हिमालयाज के अंदर, और कुछ ऐसे अननोन और जो हमने अभी तक सर्च नहीं करा है उन एरियाज़ के अंदर बहुत सारी मेडिसिन होते हैं, अनडिस्कवर्ड मेडिसिन विल बी देयर। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो द नेक्स्ट वन टॉपिक इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी लेवल्स की, लाइक ग्लोबल लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया, लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी के क्या है। सो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, पूरे ग्लोब की, पूरे प्लैनेट की, अर्थ प्लैनेट की क्या डाइवर्सिटी। इट हैज़ बीन सेड दैट टोटल अराउंड 30 मिलियन स्पीशीज, जिसके अंदर से अभी तक जो है 1.4 मिलियन स्पीशीज जो है हमने डिस्कवर करी है। तो अभी इतनी सारी स्पीशीज डिस्कवर करना बाकी है, और इसमें ये भी जो है मेनली जो है हमने क्या कहते हैं, लाइक इन बर्ड्स, इन फंगाई और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर करिए ना, मैनी मोर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट वी हैव स्टिल हैव टू क्लासीफाई और आइडेंटिफाई कि किस रीजन से कहाँ की करती है। तो एट अ ग्लोबल लेवल अगर हम हर एक कॉन्टिनेंट को, हर एक एरिया की बात करें तो ओनली वी हैव डिस्कवर्ड 1.4 मिलियन स्पीशीज आउट ऑफ 30 मिलियन। एंड इफ वी टॉक अबाउट नेशनल लोकल लेवल, लाइक अगर हम इंडिया की बात करें अपने नेशनल लेवल पे, तो इंडिया एज अ बायोडाइवर्स कंट्री विथ मैनी एंडेमिक स्पीशीज की बहुत सारी स्पीशीज है, बट उसमें से वी हैव ओनली डिस्कवर्ड 1,08,276 स्पीशीज, जो भी मेनली आर फोकस्ड ऑन बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दिस आर एट द लोकल और नेशनल लेवल। कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के लेवल पे वी हैव ओनली डिस्कवर्ड दिस मच ऑफ स्पीशीज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर टॉपिक, दैट इज इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन। तो लाइक मेगा डाइवर्सिटी क्या होती है कि भाई इट हैज़ बीन सेड दैट इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ी रिच एडवांस्ड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लाइक हमने अभी प्रीवियस वीडियो में बात करी, हमारा जो बायोजोग्राफिकल डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, दैट आर अराउंड 10, लाइक टोटल 10 डिफरेंट रीजन्स आर देयर। तो इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज के अंदर आता है ये। ऑल्सो होम टू 60% ऑफ कुछ परसेंटेज है वर्ल्ड की स्पीशीज के अंदर इंडिया का नाम है। एंड हमारे कंट्री के अंदर इट इज़ रिचनेस इन बोथ फ्लोरा एंड फोना विद मैनी एंडेमिक स्पीशीज। आप पूछोगे एंडेमिक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो फर्स्ट बिफोर टू दैट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी। तो हॉटस्पॉट का ये मतलब होता है वो रीजन्स, वो एरिया जो कि बहुत रिच हुआ करते थे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, इन कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पर धीरे धीरे वो जो चीज़ें डिस्टिंक्ट होती गई या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा यूसेज हो गया। तो लाइक मान लो जो वेस्टर्न घाट्स है या ईस्टर्न हिमालयाज है, ये जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ अवेलेबल दे, तो दे आर दी हॉट स्पॉट। बट इसके अंदर क्या हुआ, अब वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे क्या कहते हैं डिस्टिंक्ट यहाँ पे स्पीशीज जो है वो कम होने लग गई है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि एक हॉट स्पॉट बनने के लिए किसी भी रीजन को, एरिया को क्या होना ज़रूरी है, तो देयर शुड बी मोर देन 1500 ऑफ स्पीशीज। जो वहाँ हॉट स्पॉट के अंदर एक एरिया के अंदर देयर शुड बी मोर देन 1500 ऑफ स्पीशीज, जिसके अंदर 70% जो है वो या तो यूज हो चुकी है या फिर खराब हो चुकी है। देन द रीजन इज नो कॉल्ड एज हॉटस्पॉट रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लाइक दीज आर द एग्जाम्पल जो इंडिया के हॉटस्पॉट रीजन के अंदर आते थे, ठीक है। तो दैट्स वाई, बट कुछ जो है यहाँ के एरिया जो है वो लाइक क्या कहते थे, उसका मिसयूज हुआ या ओवर यूज हुआ, जिसकी वजह से वो उस एरिया में नहीं रहे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हॉटस्पॉट रीजन। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसके से बायोडाइवर्सिटी है, कुछ ऐसी स्पीसीज है एनिमल्स के, प्लांट्स की, जो एक्सटिंक्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है बिल्कुल, या आर दैट एट दैट पॉइंट कि अगर उनको कुछ बहुत ही छोटे नंबर्स के अंदर बची है कि अगर उनको प्रॉपर टेक केयर नहीं किया गया तो दे आर विल ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट। तो द फर्स्ट वन दैट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज हैबिटेट लॉस्ट। हैबिटेट लॉस्ट हो गए, जैसे कि फ्लड्स हो गए आपके, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, जिसकी वजह से आपके क्या होता है, कुछ बहुत सारे फॉरेस्ट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट फायर हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ को गंवा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गई, ठीक है, या अर्बनाइजेशन हो गया, जिसकी वजह से कहते हैं
all these causes are known as habitat loss. The second one is poaching and wildlife trade. वैसे तो हंटिंग इलीगल है इंडिया के अंदर, बट देयर आर गोइंग टू बी इलीगल हंटिंग होती है, क्योंकि एनिमल्स का जो फर होता है उससे बैग, पर्स और कोट्स वगैरह बनते हैं, जिसकी वजह से उस इलीगल हंटिंग की वजह से क्या होती है, और ट्रेड होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की, एक दूसरे एनिमल्स को जो है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल जिसको हम खाते भी हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, काफ़ी इलीगल हंटिंग होती है कुछ एनिमल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पहले कम होता है, इलीगली हंटिंग करके उनके वो ब्लैक मार्केट के अंदर या ग्रे मार्केट के अंदर उनको सेल किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर फर एंड एवरीथिंग, जिसकी वजह से एनिमल्स जो है वो कम हो रहे हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। जगह को लेके ह्यूमंस की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट को काट के हम उसके आसपास घर बना ले, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो है दे आर गोइंग टू एंटर इन ह्यूमन एरिया, जिसकी वजह से या तो क्या कहते हैं, मैन विल गेट किल्ड बाय द वाइल्ड एनिमल, या फिर वाइल्ड लाइफ को भी उसकी वजह से नुकसान होता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज को लेके बहुत लड़ाई है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अनदर टॉपिक, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो इनसूट कंजर्वेशन एंड एक्सूट कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्या होती है, किसी चीज़ को बचा के रखना, कंजर्व करके रखना, संभाल के रखना। तो एनिमल्स है, प्लांट्स है, अब नेचर की ऐसी हालत हो गई है, फिर ऐसे एक्सटिंक्ट या फिर ऐसी जगह पे वो आके खड़ा हो गया है कि वो ही इज़ नॉट एबल टू, द नेचर इज़ नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो उसके लिए ह्यूमंस को जो है पहले उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टू टाइप्स, इंसूट एंड एक्सूट। तो इंसूट का क्या मतलब होता है, प्रोटेक्टिंग स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जैसे मान लो कुछ ऐसा एरिया है, जैसे कि क्या आप बोल सकते हो, आपके नेचुरल पार्क्स होते हैं, आपके सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, वो ऐसा नहीं होता कि एक एरिया, वो पहले से एरियाज होता है यू फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उस एरिया के अंदर है, तो उसको हम कहते हैं इंसूट। इंसूट मतलब विद इन दैट नेचर और विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन एरिया के अंदर जो स्पीसीज है, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यू कैन से नैनीताल के अंदर जो जिम कॉर्बेट है, वो एक नेचुरल एरिया, नेचुरल फॉरेस्ट है, नेचुरल रिवर्स है वहाँ पे, पर वहाँ पे जो भी एनिमल्स है, जो भी प्लांट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस फॉरेस्ट को ना डिस्ट्रॉय किया गया, ना उस एनिमल्स को कहीं और फर्दर मूव किया गया, उसी एरिया के अराउंड एक प्रोटेक्टेड लेयर, प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया, ताकि नेचुरल तरीके से, नेचुरल हैबिटेट के अंदर उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके और भी फर्दर एग्जांपल्स हो गए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो कि होते हैं, यू कैन ऑल्सो एंड विजिट दैम, बट आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे बहुत से, वहाँ पे एनिमल्स जो खुले घूम रहे होते हैं, नॉट लाइक इन जू और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट वन इज एक्सूट कंजर्वेशन। एक्सूट के अंदर क्या होता है, आप एनिमल्स को, स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जूज होते हैं, कुछ होते हैं, और इसके अंदर कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं होती, प्रोटेक्टिंग स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। मान लो आपको क्या कहते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर या हैबिटेट के अंदर ही ग्रो होते हैं, बट आप उस चीज़ को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इंसूट कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन एनिमल्स को, उन स्पीशीज़ को वहाँ से उठा के किसी और पर्टिकुलर रीजन के जो आपके क्लोज हो, कुछ हो, वहाँ आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, वहाँ आप उनको कंजर्व करते हो। तो डैट इज नॉन एज प्रोटेक्टिंग स्पीशीज आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, कि वहाँ पे वो ना मिली है, ना वहाँ पे उनका ओरिजिन है, ना वहाँ पे वो पैदा हुई है, उसके आउटसाइड आप कहीं जाके उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जूज हो गए, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, या सीड बैंक्स हो गई, वो वहाँ का ओरिजिन नहीं है, but they are being protected there. Now let's move towards the last topic, that are the important questions. So if you can say the focus point are going to be your answer, जो आपको इन हर एक क्वेश्चन के अंदर कवर करना है, बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स, तो आपको उसके ये 3 स्पीशीज के बारे में डाइवर्सिटी में बताया गया था। अलॉन्ग विद दैट एवरी क्वेश्चन के नीचे ये सब कुछ है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेट्स मीट अगेन विद अनदर वीडियो।